Opajon, mana ko'ring, rasmini ko'rib bering. Buning boy. Puli ko'p. Yonidagi yoqmayapti menga. O'lgan u opa. O'shaning uchun siyrat rasm bo'lib turgan ekanda, sal qimmatroq bo'ladi. Buni o'zingga qarach. Opa, beraman. Bilasiz-ku? Hop. O'qiganimdan keyin narx chiqadi. Shuni menga qayratib bersangiz bo'ldi. Sevib qolsin, tillaga ko'mib tashlayman sizni. Bilasizmi qanaqa boyligini? Uylar quradi, do'konlari bor. Lekin uni katta janjallar kutyapti. Menimcha yaxshi ko'rib qolsa, onasi rozi bo'lmaydi. Boshqa janjal. Bular boylik talashyapti. Nima bu opa? Hoy. Nima qiliq bu? Yaxshidir. Senga mumkin emas likillash. Nima qilib likillavyapsan? Yaxshiman, oyi. Kecha men biz qilib yuruvdik-yu. O'ynashini qaranglar buni. Esdan chiqarmish. Hech qatim ormayapti, oyi, yaxshiman. Sen sakramaga, mumkin emas senga. Yo, yaxshi. Baribir-da, mumkin emasmi? Mumkin emas hali. Menga qara, bugun Siroj bilan ko'rishaman. Meni ko'rsa tuzalib qoladi bu. Gaplashaman. Kerak emas, xola. Gaplashmang. Bo'yniga osilamanmi? Yo, desani katta ko'cha. Ha, yaqinda yuruvding-ku? Men adam bilan Amerikaga ketaman. Vizamni kutyapman. Voy. Bo'ldimi? Jinni bo'lgan ekanman, deya xola. Oyi, to'g'risi, cholli boshga yuradimi? Sen jim o'tir. Yana trendlaringni olib yurmalaring. Likillab. Baribir yaxshi ko'raman deya Siroj ekanmi? Voy. O'sha chol yaxshi-da. Chol bo'lib yotibdi-ku. Yanida erkalanib yuraman. Ana kelishyapti. Tush. Sog'inib ketdim seni. Boshingiz qorong'imi? Barnoni urintirgim kelmayapti-da. Barno ham qilmaydi. Barno uxlaydi. Qaranglar-ya. Homilador ayollar vaqtida uxlash kerak. Voy, bitta sizda ekan-a, xotin. Gazi yoniga ham ko'p borish kerak emas. Muzqaymoqingizni olib kelaman, mayli. Bo'pti, yur, men ham chiqaman. Yo'q, shart emas. Siz bilan sudralib yurishim qoluvdi endi. Sizlarni muhabbatinglar boshqachami, Barno? Men emas. Opajon, mana ko'ring, rasmini ko'rib bering. Buning boy. Puli ko'p. Yonidagi yoqmayapti menga. O'lgan u opa. O'shaning uchun siyrat rasm bo'lib turgan ekanda, sal qimmatroq bo'ladi. Buni o'zingga qarach. Opa, beraman. Bilasiz-ku? Hop. O'qiganimdan keyin narx chiqadi. Shuni menga qayratib bersangiz bo'ldi. Sevib qolsin, tillaga ko'mib tashlayman sizni. Bilasizmi qanaqa boyligini? Uylar quradi, do'konlari bor. Lekin uni katta janjallar kutyapti. Menimcha yaxshi ko'rib qolsa, onasi rozi bo'lmaydi. Boshqa janjal. Bular boylik talashyapti. Nima bu opa? Hoy. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुद गज़े की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि जब दुआ का बाप घर वापस आता है तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि रास्ते में उसके साथ जो कुछ होता है उस वजह से उसका जो ब्लड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उसका भाई पास बैठा होता है और कहता है कि आप टेंशन
टेंशन मत ले, अल्लाह बेहतर करेगा। और उसकी बीवी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सब घर में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर नाज़रीन उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि दुआ अपने बाप के पास आती है और कहती है कि बाबा आप टेंशन मत लें, अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं, बल्कि मुझे तुम लोगों की फ़िक्र है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर कुछ हादसा वगैरह हो जाता तो तुम लोगों का क्या बनता। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लें। और फिर उसके बाद वो अपने बाप से बात करती है और कहती है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़े होते हैं उनके पास। और उसके बाद उसका बाप कहता है कि इन लोगों को कोई भी नहीं परवाह होती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद नाज़रीन दुआ अपने बाप से कहती है कि बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और अगर आइंदा से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो नाज़रीन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शमशेर के बाप वो अपने ऑफिस के लिए जाता है और उसने नई कंपनी खोली है। इस वजह से वो जब दफ्तर जाता है तो वहाँ पर उसे बुलाया जाता है और जो उसके बाद उसका दोस्त उसे बुलाता है, उसे होटल का सारा मैनेजमेंट समझाता है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फिर उसके बाद जो वहाँ पर उसका दोस्त होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर हैं, क्योंकि शमशेर का बाप बहुत बड़ा आदमी है और ऐसे ही लोग उसे ऐसे इवेंट पर बुलाते रहते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो फिर उसके बाद वो अपने आदमी से कहता है कि शमशेर का बाप अपने आदमी से कहता है कि इसको चेक दो। तो फिर उसके बाद वो उसे चेक दे देता है और फिर उसके बाद वो जब चेक पकड़ता है तो फिर वो गौर से देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें वो ठीक तरह से पढ़ता नहीं और फिर उसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं कि जो शमशेर का बाप होता है वो उससे ये होटल जो है वो अपना नाम करवाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता। वो कहता है कि जी ये ठीक है, आप दोबारा ज़रूर चक्कर लगाइएगा। तो फिर जो शमशेर का बाप होता है बहुत बड़ा आदमी है और फिर उसे कोई परवाह नहीं होती। दूसरी जानिब हादसे के बाद शमशेर का दोस्त होता है और फिर उसके बाद उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। तो फिर नाज़रीन हमें वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो शमशेर का बड़ा भाई है वो कहता है कि हर तरफ ये खबर फैली होती है कि जो शमशेर है उसने हादसा किया है और जो रोड में सबके सामने उसने एक बुज़ुर्ग पर गन रखी है। तो फिर उसके बाद उसका जो भाई होता है वो कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया, बाबा की इज़्ज़त को तुम लोग उछाल रहे हो और तुम शमशेर को रोक नहीं सकते थे कि शराब पी कर वो गाड़ी चला रहा था। जिस पर वो कहता है कि जी हम क्या करें, हम उसे रोक नहीं सकते, आप जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा जीती है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो भाभी होती है उसको भी ये खबर मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी जो बहन होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि शमशेर ने उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तो फिर उसके बाद शमशेर को जब होश आ जाता है तो फिर वो उसके सामने उसकी देवरानी की जो सिस्टर होती है वो वहाँ पर होती है, जो उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन जो शमशेर है वो उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो उसे तो पसंद ही नहीं करता। वो शमशेर से कहती है कि तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। तो फिर उसके बाद शमशेर उसे कहता है कि क्या किया है मैंने। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम आज एक मर्डर करने वाले थे और उसके बाद वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हें ये सब सूट नहीं करता। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि ये खबर हर तरफ फैल चुकी है कि तुमने गन से किसी पर हमला करने की कोशिश की है। तो फिर उसके बाद शमशेर कहता है कि मुझे किसी का भी डर नहीं है और मैं किसी से भी नहीं डरता। तो फिर उसके बाद वो उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो शमशेर उसे कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता हूँ और आइंदा से मेरे मामले में तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शमशेर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो फिर उसके बाद
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ड्रामा सीरियल कैसी तेरे खुद गर्जे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि जब दुआ का बाप घर वापस आता है तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि रास्ते में उसके साथ जो कुछ होता है उस वजह से उसका जो ब्लड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उसका भाई पास बैठा होता है और कहता है कि आप टेंशन मत ले, अल्लाह बेहतर करेगा। और उसकी बीवी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और सब घर में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर नाजरीन उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि दुआ अपने बाप के पास आती है और कहती है कि बाबा आप टेंशन मत लें, अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद उसका बाप कहता है कि बेटा मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं, बल्कि मुझे तुम लोगों की फ़िक्र है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर कुछ हादसा वगैरह हो जाता तो तुम लोगों का क्या बनता। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लें। और फिर उसके बाद वो अपने बाप से बात करती है और कहती है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़े होते हैं और उनके पास। और उसके बाद उसका बाप कहता है कि इन लोगों को कोई भी नहीं परवाह होती, जाए कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद नाज़रीन दुआ अपने बाप से कहती है कि बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और अगर आइंदा से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो नाज़रीन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शमशेर के बाप वो अपने ऑफिस के लिए जाता है और उसने नई कंपनी खोली है, इस वजह से वो जब दफ्तर जाता है तो वहाँ पर उसे बुलाया जाता है। और जो उसके बाद उसका दोस्त उसे बुलाता है, उसे होटल का सारा मैनेजमेंट समझाता है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें ये दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और फिर उसके बाद जो वहाँ पर उसका दोस्त होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर हैं, क्योंकि शमशेर का बाप बहुत बड़ा आदमी है और ऐसे ही लोग उसे ऐसे इवेंट पर बुलाते रहते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो फिर उसके बाद वो अपने आदमी से कहता है कि शमशेर का बाप अपने आदमी से कहता है कि इसको चेक दो। तो फिर उसके बाद वो उसे चेक दे देता है और फिर उसके बाद वो जब चेक पकड़ता है तो फिर वो गौर से देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें वो ठीक तरह से पढ़ता नहीं। और फिर उसके बाद नाज़रीन हम देखते हैं कि जो शमशेर का बाप होता है वो उससे ये होटल जो है वो अपना नाम करवाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता। वो कहता है कि जी ये ठीक है, आप दोबारा ज़रूर चक्कर लगाइएगा। तो फिर जो शमशेर का बाप होता है बहुत बड़ा आदमी है और फिर उसे कोई परवाह नहीं होती। दूसरी जानिब हादसे के बाद शमशेर का दोस्त होता है और फिर उसके बाद उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। तो फिर नाज़रीन हमें वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो शमशेर का बड़ा भाई है वो कहता है कि हर तरफ ये खबर फैली होती है कि जो शमशेर है उसने हादसा किया है और जो रोड में सबके सामने उसने एक बुज़ुर्ग पर गन रखी है। तो फिर उसके बाद उसका जो भाई होता है वो कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया, बाबा की इज़्ज़त को तुम लोग उछाल रहे हो और तुम शमशेर को रोक नहीं सकते थे कि शराब पी कर वो गाड़ी चला रहा था। जिस पर वो कहता है कि जी हम क्या करें, हम उसे रोक नहीं सकते, आप जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा जीती है। तो फिर उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो भाभी होती है उसको भी ये खबर मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी जो बहन होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि शमशेर ने उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तो फिर उसके बाद शमशेर को जब होश आ जाता है तो फिर वो उसके सामने उसकी देवरानी की जो सिस्टर होती है वो वहाँ पर होती है, जो उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन जो शमशेर है वो उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो उसे तो पसंद ही नहीं करता। वो शमशेर से कहती है कि तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। तो फिर उसके बाद शमशेर उसे कहता है कि क्या किया है मैंने। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम आज एक मर्डर करने वाले थे। और उसके बाद वो उसे ये भी कहती है कि
تمہیں یہ سب سوٹ نہیں کرتا. تو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ خبر ہر طرف پھیل چکی ہے کہ تم نے گن سے کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو پھر اس کے بعد شمشیر کہتا ہے کہ مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے اور میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا. تو پھر اس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. تو شمشیر اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا ہوں اور آئندہ سے میرے معاملے میں تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور شمشیر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد